ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀ। ਰਾਈਟ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮੈਗਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ। ਦਾ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਟ ਲੰਡਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਈਟ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਭਾਈ ਤਿੰਨ, ਯਾਨੀ 1930, 1931 ਤੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ? B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ। B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 1930, 31, 32 ਤਿੰਨਾਂ ਗੋਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਫਟਰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ 74 ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 58 ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਆਏ ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 16 ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਥਰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ 1939 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ऑफिशियली डिमांड करता सी भी पाकिस्तान होना चाहिए, पर पाकिस्तान का पहली बार नाम जेकर पूछा जाए तो किहड़ी गोलमेज कॉन्फ्रेंस सी वो तीजी सी। राइट, सो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट बनता भाई। इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन ते आने, चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਸਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਸਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਸਮਾਰਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, 545 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਬਿਸਮਾਰਕ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਬਿਸਮਾਰਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਟੋ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਟੋ ਵਨ ਬਿਸਮਾਰਕ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਸਮਾਰਕ ਯਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 182 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, 182 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਟਾਈਟਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੌਰਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟੋ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿੰਟੋ ਸੀਗਾ ਵਾਇਸਰਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਲੇ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਿੰਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੌਰਲੇ ਮਿੰਟੋ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਈ? ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? SP ਸਿਨਹਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਸਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਗਾਂਧੀਅਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈਗੀ, ਸਟੇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਲਫ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ, ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ 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 ਤਕੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ, ਸ਼ਿਵਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਲਾਇਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮਦਰਾਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਇਹ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਮਦਰਾਸ ਸੀਗੇ 1907 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1911 ਤੱਕ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾ ਸਵਾਮੀ ਅਯਰ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਥਰਡ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ। ਥਰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਣੀਪਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹ
ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 14 जनवरी 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ। ਐਂਡ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ यानी ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਦਾ शिवराओ बाऊ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਸੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਰਾਠਾ ਵਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦ ਅਫਗਾਨਸ ਇਨ ਸਟਰੈਂਥ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ डायरैक्ट एक्शन डे घोषित किया, यानी किस दिन को किया बेसिकली, राइट। हम डायरैक्ट एक्शन डे भी आप पुराने लेक्चर के पढ़िया, तो डेट मैं तुहानूं उदों भी दसी सी। तो डायरैक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 नूं सी। एंड किने डिकलेयर किया सी, याद होना चाहिए तुहाडे, मुहम्मद अली जिन्ना ने। मुहम्मद अली जिन्ना ने यह डिकलेयर किया सी, पूछा जा सकता विच डे की थां ते हू ला के कि हू डिकलेयर्ड एज डायरैक्ट एक्शन डे है ना। डायरैक्ट एक्शन डे किने घोषित किया सी, तो मुहम्मद अली जिन्ना ने किया सी। क्यों कहते भाई सानूं तां साडा अलग कंट्री चाहिए, पार्टीशन चाहिए है। तो 16 अगस्त 1946 में किया सी। एंड इन्हों आप कहने द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, बहुत ज़्यादा यानी जी हो गई किलिंग हुई मुस्लिम तो हिंदुओं के विचकार, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम नाल भी इसनूं जानिया जाता है इस दिन, राइट। 16 अगस्त 1946। सो यानी कि यदा आंसर आ जाऊगा जी बी। समझ लगी, ओके है ना काम। चलो अगला क्वेश्चन आ गया, कहना महात्मा गांधी नूं भारत छड्डो लहर दौरान कदों गिरफ्तार किया गया सी। हुण देखो महात्मा गांधी द्वारा जिहड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया सी, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 सारिਆਂ ਨੂੰ पता गा। पर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ड्राफ्ट तैयार किया गया सी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ड्राफ्ट तैयार किया गया सी कि भारत छड्डो अंदोलन, पहले ड्राफ्ट तैयार होगा, प्लैनिंग होगी, तो ड्राफ्ट जिहड़ा तैयार किया गया सी 5 अगस्त 1942 ਨੂੰ तैयार किया गया सी। फिर फाइनली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वालों आ ड्राफ्ट किहदे द्वारा तैयार किया जाऊगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह ड्राफ्ट तैयार किया 5 अगस्त 1942। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद फिर 7 ते 8 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ यानी जो ड्राफ्ट तैयार किया सी सारा पढ़ा के ਇਹਨੂੰ करता पास। 8 अगस्त 1942 ਨੂੰ पास करता। जो पास होया तो बहुत ज़्यादा भुचाल पै गया। पहले ही ब्रिटिश ਨੂੰ पता लग गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ा अंदोलन होने वाला। कारण की सीगा कि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर भी चल रही सी, है ना, 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945। तो ब्रिटिश पहले ही बहुत ज़्यादा बिजी सी। तो उन्होंने आया सीगा भी इंडिया ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यानी 9 अगस्त 1942 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ है ना। सो बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ है। 9 अगस्त 1942 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, यानी मैं थोड़ा जिहा गलत बोल गया, सोहना नहीं, एक यादगार जिहड़ा इंसीडेंट होया सीगा इत्थे, सॉरी वैसे सोहना बोलना नहीं चाहिए, राइट। तो इत्थे ना की होया सीगा, क्विट इंडिया मूवमेंट वाले दिन, क्विट इंडिया मूवमेंट वाले दिन एक बहुत वड्डा इंसीडेंट हो गया सीगा पटना दे विच। पटना सैक्रेटरीएट दे मूहरे ना बेसिकली 7 स्टूडेंट सीगे, वो प्रोटेस्ट कर रहे सी, उन्होंने मारता सी, पता 7 स्टूडेंट्स नूं। तो 7 स्टूडेंट जिहड़े सीगे उन्होंने मारता सीगा। यह क्वेश्चन पूछा गया SSC दे विच, सेंटर एग्जाम दे विच। मेरा मनना यह है कि वह कदे ना कदे पंजाब एग्जाम दे विच आ जाऊगा। जिहड़े 7 स्टूडेंट मारे गए सी पटना सैक्रेटरी के सामने प्रोटेस्ट करते हुए, उन्होंने मारन का हुक्म किहने दिता सी, यानी उन्हां ते गोलियां चलाउण दा हुक्म किहने दिता सी। उहदा नाम हैगा जी WG आर्कर, आर्चर कह लो, आर्चर, WG आर्चर। ये क्वेश्चन सच्ची इंपॉर्टेंट है, ठीक है। WG आर्चर SSC तो बाद यूपी बिहार के तक घूम गया, हम पंजाब के आने की इस क्वेश्चन की तैयारी है। WG आर्चर, राइट। तो 7 स्टूडेंट की जी किलिंग यानी की गई सी, उन्होंने यानी मारन का जो ऑर्डर सीगा, है ना। तो वह चलो खैर, इस तो बाद आ गया, कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वार एसोसीएटेड, यानी मैच ऑफ द फॉलोइंग। हुण कली डिटेल तो आप चलो किसी ना किसी क्वेश्चन के आई जानी है। फिलहाल आप मैच ऑफ द फॉलोइंग कर लें। जिमें विनोबा भावे, तो विनोबा भावे की हैगी बुधान मूवमेंट, जेकर तुहानूं पता हो, नहीं पता तो इहनूं याद कर लो। यानी ਇਹਦਾ आ गया जी चौथा, विनोबा भावे की हैगी बुधान। इस तो बाद मेधा पाटेकर आ गया, मेधा पाटेकर की किहड़ी है भाई, इत्थों आ गया नर्मदा बचाओ। मेधा पाटेकर की किहड़ी है, नर्मदा बचाओ, यानी बी दा आ गया तीसरा,
राइट। एंड इस तो बाद आ गया जी सुंदर लाल बहुगुण, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट जेकर पढ़ी हो तो चिपको मूवमेंट यानी यदा आ गया जी सीधा पहला, सीधा आ गया पहला। एंड जय प्रकाश नारायण की हैगी जी संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति यानी यदा आ गया डी का दूसरा। राइट है। सो ये चीज़ा याद कर लो भाई केरा, ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुधान मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ बहुत बार पूछा गया, चिपको मूवमेंट भी बहुत बार पूछा गया। बाकी कदे ना कदे क्वेश्चन इन्हों से रिपीट हो जाएंगे, आप कर लाँगे। अगला आ गया कहना इन्हों विचों किहड़ा जोड़ा सही तरह नाल मेल खांदा नहीं है, यानी किहड़ा मेल नहीं खाता। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिल्कुल पता अपन। पहला विलेज किहड़ा सीगा, सतारा विलेज, जिन्होंने इन्होंने अडॉप्ट कर लिया सीगा। राइट है। इस तो बाद लॉर्ड मिंटो आ गया, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो आप हुणे पढ़ के हटे। इंडिया कौंसल एक्ट यानी ये भी बिल्कुल सही है, यानी आ भी सही हो गया। लॉर्ड वेल्सले बिल्कुल सही है, सबसिडरी अलायंस, ये भी आप बहुत बार पढ़िया। लॉर्ड करजन यानी यह स्टेटमेंट है जी गलत होगी। लॉर्ड करजन के टाइम से 1905 के विच यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऐलान होया सी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 के होयागा पास, ये किया गया जी पासड बाय लॉर्ड लिटन, पासड बाय लॉर्ड लिटन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता कि वर्नैकुलर एक्ट है जो प्रेस एक्ट है बेसिकली अपनी रीजनल लैंगुएज जो प्रेस एक्ट सीगा उसनूं पास किया गया सी लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 के। लॉर्ड करजन यानी ये नहीं आऊगा, यानी यही अपना बेसिकली आंसर बनता है। समझ में बात आई भाई, बहुत सोहना क्वेश्चन है। चलो अगला आ गया कहता 1905 में बंगाल प्रांत को 2 हिस्सों में वंड दिता गया सी। यह यानी जो ऐलान होया सी किहदे द्वारा होया सी, हुणे मैं गल करके हटिया, तो लॉर्ड करजन द्वारा होया सी भाई। हालांकि 1911 के इस फैसले को वापस लेना पै गया सीगा। वापस लैन तो बाद अच्छा वापस लैन वेले कौन सीगा वायसराय, उस टाइम तो सीगा जी लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। तो वापस लैन वेले लॉर्ड हार्डिंग सीगा, ऐलान करने वेले लॉर्ड करजन सी, बदल गया सी। राइट। सो लॉर्ड हार्डिंग सी उस टाइम ते, एंड उस टाइम ते 1911 के विच ऐलान होया कि कलकत्ता तो जिहड़ी हैगी भाई वो दिल्ली कैपीटल हो रही है, यानी दिल्ली नूं कैपीटल बनाया गया सीगा 1911 के विच ऐलान करके। राइट। लॉर्ड करजन, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया द होम रूल लीग मूवमेंट जी स्टार्ट किहदे द्वारा की गई, महात्मा गांधी द्वारा बीजे तिलक। यानी कि इस तो बाद यानी हुण जेकर बीजे तिलक की आप जेकर गल करते हैं तो ये तुहानूं याद होना चाहिए एनी बेसेंट भी, एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग स्टार्ट की सी। ठीक है। ये कदों की सी, दोनों ने ही 1916 के विच। राइट। 1916 के की सी। बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक बारे गल करिए तो बालपाल लाल तुहानूं पता होणगे जिहड़े एक्सट्रीमिस्ट सीगे, तो बीजी तिलक तो बेसिकली इन्होंने एक तो पहली गल तो लोकमान्य तिलक भी कहा जाता, लोकमान्य तिलक। ये कदों कहा गया सी लोकमान्य तिलक, एक क्वेश्चन आऊगा आप उदों करांगे, अगला क्वेश्चन ही आऊगा लोकमान्य तिलक। ठीक है। सो जिहड़ा बाल गंगाधर तिलक सी बेसिकली इन्हों अरैसट कर लिया गया सी, है ना, अरैसट कर लिया गया सीगा। तो कदों तो कदों ये अरैसट रहे हैं 1908 तो लैके 1914 तक, है ना। किहड़ी जेल सीगी भाई, मंडाले जेल। सो काफ़ी सारी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां। जदों होम रूल लीग मूवमेंट सीगी ना उस टाइम ते इन्हां दा नाम रखा गया सी तिलक, यानी कि लोकमान्य तिलक, है ना। उस टाइम ते लोकमान्य तिलक इन्हां दा नाम रखा गया सी, दस ही दिता मैं। ठीक है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। एक इन्हां ते केस चलदा सीगा मिस्टर रैंड दा जिहड़ा मर्डर केस सीगा, मिस्टर रैंड जिहड़ा मर्डर केस सीगा ना उस टाइम ही इन्हां दी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हुई सी ते लोकां ने कहा सी कि साडा ये तां साडे हक्कां वास्ते है, बिलवड ऑफ द पीपल, जिन्होंने कहता लोकमान्य, बिलवड ऑफ द पीपल। राइट। सो उस टाइम पर कहा गया सी, कई बार पूछ लिया ना कि बीजे तिलक का नाम लोकमान्य तिलक कदों रखा गया, जदों मिस्टर रैंड मर्डर केस इन्हां ते चल रहे सी जां जदों होम रूल लीग मूवमेंट सी। दोनों चीज़ां इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस तो बाद आ गया कहता साइमन कमीशन वाज बायकॉटेड बाय इंडियंस बिकॉज, हुण साइमन कमीशन इंडियन द्वारा बायकॉट इस करके किया गया क्योंकि जिहड़ी रिपोर्ट सीगी जां ऐ कह लो रिपोर्ट बनाने वाले जिहड़े सीगे उहदे विच एक भी भारती नहीं सी, सारे चिट्टे चिट्टे ही सी। राइट। यानी पहला ऑप्शन जिहड़ा हैगा इसने कहता भारतीयों की नागरिक आज़ादियों को रोकने की कोशिश की, नहीं इसने भारत को वंडण का प्रस्ताव रखा, जां इट वाज ऑन ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन, है ना, यानी ये कोई भी भारती शामिल नहीं सी। सो इस करके यदा बायकॉट किया गया। तो लाला लाजपत राय द्वारा एक प्रोटेस्ट के लीड किया गया सी जदों लाठीचार्ज होया तो उस तो बाद उन्होंने यानी डैथ हुई है। ठीक है। सो ऑल वाइट कमीशन विदाउट इंडियन। ठीक है। सो याद रखना, एक जदों साइमन कमीशन बायकॉट किया गया उस टाइम ते वायसराय कौन सी बहुत बार पूछा जाता, उस टाइम ते जिहड़ा वायसराय सीगा जी उसका नाम सीगा लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। सो याद रखना लॉर्ड लिटन उस टाइम ते वायसराय सी। ठीक हो गया भाई।
अगला आ गया, कहना जी द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का संस्थापक कौन सी? बहुत ज़्यादा सौखा। ब्रह्मो समाज 1828 ਦੇ ਵਿੱਚ राजा राम मोहन राय द्वारा, है ना, राजा राम मोहन राय द्वारा, यानी कि आंसर की आ गया राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित की गई। कितने की गई है? बॉम्बे की गई। इसे इन्हों फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस किन्हों भला? राजा राम मोहन राय नूं। ते सती प्रथा नूं रोकण दे विच सब तो वड्डा योगदान इन्हां दा, सती प्रथा। हालांकि इन्हां दा जिहड़ा ब्रह्मो समाज का जिहड़ा मोटिव सीगा वो पॉलीगैमी नूं रोकना, यानी ज़्यादा विआह जिहड़े करा लेंदे उन्हां नूं रोकना, ते जां फिर जिहड़े कास्ट सिस्टम सी ਉਹਦੇ खिलाफ सी बेसिकली ये, तो जिहड़ी विडो रीमैरिज एक्ट सीगा उन्हां दी विडो रीमैरिज दी भी। तो सती प्रथा दे बेसिकली ज़्यादा तुसीं कह लो भी इन्हां ने काम कीता। ठीक है, तो ये आंसर जिहड़ा कि आ जाऊगा भाई, याद रखना। सती प्रथा ते पूर्ण तौर पर जिहड़ा लगाम लग्या सी 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ये भी ਆਪਾਂ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, राइट है जी। इस तो बाद आ गया, कहता सही कालक्रम यानी विच दर्शाओ, यानी जिहड़ा ब्रिटिश ने हेठां जो भी अपने स्थानां दे विच फैक्ट्रियां यानी वपारक केंद्र बनाए आ। सो सब तो पहला जिहड़ा पुछा जांदा हुंदा भी फर्स्ट फैक्ट्री ब्रिटिश ने कित्थे लाई आ, वो सूरत दे विच लाई आ। सो ना तो आ ऑप्शन बनता ना आ ऑप्शन बनता, सिर्फ आही ऑप्शन रह गया। सो याद रख लो कि पहला सूरत दे विच सी, फिर मद्रास सी, फिर कलकत्ता सी ते फिर बॉम्बे सी, राइट है। सो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता ते बॉम्बे, यानी इसका आंसर आ जाऊगा जी डी। सौखा है। तो ब्रिटिश ने इत्थे इत्थे अपनी फैक्ट्रियां लगाइया सी। 1857 का जिहड़ा विद्रोह कहंदा वो किन्ना द्वारा स्टार्ट किया गया? दा सिपाही यानी फौजियों द्वारा, जमींदार द्वारा, पीजेंट द्वारा, जां फिर प्लांटेशन वर्कर। सो फौजी विद्रोह सीगा। कित्थों स्टार्ट होया सी भला? ये मेरठ तो, है ना, मेरठ तो स्टार्ट होया सीगा भाई, राइट है। सो याद रख लो फौजी विद्रोह सीगा 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1939 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ INC ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੱਤਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾਰਮਨ। ਪੱਤਾ ਭਾਈ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੀਤਾਰਮਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਕਹਿੰਦੇ 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਭਾਈ। ਸੋ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਾਈ? ਸਰਦੁਲ ਸਿੰਘ ਕਵਿਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਰਦੁਲ ਸਿੰਘ ਕਵਿਸ਼ਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮਾਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਕਿ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮਾਨਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਬਿਲਵਡ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਯਾਨੀ ਕरेंगे ਜਾਂ ਮरेंगे। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਭਲਾ? 8 ਅਗਸਤ 1942 ਤੇ 9 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੈਨਿਊ ਸੀਗਾ, ਵੈਨਿਊ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ,
पर कई बारी लिखा होंदा ग्वालियर टैंक भी लिखा होंदा है ना, ग्वालियर टैंक मैदान। तो ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे दे स्टार्ट होया सी, ऐ कह लो वैन्यू सी कहदा। ठीक हो गया भाई। अगला आ गया, कहता जी इन्हां विचों कहता किस दी स्थापना BR अंबेडकर द्वारा की गई सी, है ना। स्वराज पार्टी है, तो समाज समता पार्टी है, या फिर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फैडरेशन है, या फिर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है। सो इन्हां दोनों का यानी ऑप्शन यानी कि राइट है, यानी इसका आंसर आ जाऊगा जी C एंड D। सो लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी जी BR अंबेडकर द्वारा की गई है, एंड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फैडरेशन भी है जी BR अंबेडकर द्वारा की गई है। राइट है, यानी इसका C ते D आंसर आ जाऊगा, तो यानी ऑप्शन के C ते D होना चाहिए सी। राइट, चलो खैर। इस तो बाद आ गया जी, कहना पार्टीलैस डेमोक्रेसी, हु वाज इन फेवर ऑफ ए पार्टीलैस डेमोक्रेसी। पार्टीलैस डेमोक्रेसी ते यानी पार्टी रहत लोकतंत्र के हक में कौन सीगा? जय प्रकाश नारायण सी, भुपिंदर नाथ दत्ता सी, MN रॉय सी, या फिर जवाहर लाल नेहरू सी। तो यह आंसर आ जाऊगा जी जय प्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण भी काफ़ी इंपोर्टेंट परसनैलिटी है, तो इन्हों जानिया जाता जी लोक नायक। लोकमान्य तिलक तो बाल गंगाधर तिलक है, लोक नायक कौन है? जय प्रकाश नारायण। सो काफ़ी इंपोर्टेंट है भाई। एक इन्होंने स्लोगन दिता सीगा, बहुत बार पेपरों के आता कि स्लोगन किहदे द्वारा दिता गया सी, जिन्हों आप कहने जी टोटल रेवोल्यूशन। टोटल रेवोल्यूशन का जोड़ा स्लोगन है वो दिता गया सी जय प्रकाश नारायण द्वारा। भारत रत्न वगैरह भी इन्होंने मिला गया बेसिकली। राइट, सो काफ़ी इंपोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो जय प्रकाश नारायण पार्टीलैस डेमोक्रेसी यानी इन्होंने फेवर की होती। ठीक है, स्लोगन जरूर याद रखना टोटल रेवोल्यूशन। इस तो बाद अगर जी कहते भारत में प्रांतक खुदमुख्तियारी इस द्वारा पेश की गई, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, यानी सारिया प्रोविंसिस की अपनी अपनी ताकत है ना, अपने हथों के पावर हो। ऑटोनॉमी जी इंट्रोड्यूस कदों की गई? हालांकि जो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया सी, डायरकी जो प्रोविंसिस ऐलान किया गया सी 1919 किया गया सी, जिन्होंने बाद 1935 अबॉलिश करके डायरकी एट सेंटर आ गया सी। एंड डायरकी एट सेंटर आने का मतलब यह सीगा कि पावरां नूं डिवाइड कर दिता गया, फैडरलिज्म आ गया। फैडरलिज्म जिवें आपां कहने भी फैडरेशन है कि सेंटर की सरकार तो जिहड़ियां लिस्टां बनिया हुई स्टेट लिस्ट है जिहड़े आपां सबजैक्ट पढ़ते हैं। राइट, सो बेसिकली जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, यानी प्रोविंसिस को जी ताकत अपनी आई है, पावर आई है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, यानी प्रोविंसिस डायरकी एट द सेंटर, फैडरलिज्म आ गया है ना। तो होर बहुत इंपोर्टेंट चीज़ हुई सी कि जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन सीगा वो बनया सी। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी 1935 के बनया सी। हालांकि और बहुत सारे इंसीडेंट ऐसे हुए हैं। राइट, बहुत सारा कुछ 1935 के है ना। सो ये काफ़ी इंपोर्टेंट है। 75% अपना कॉन्स्टिट्यूशन इससे तो ही बनया हुआ। चलो क्या कहना जी, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो अपना लॉर्ड माउंटबेटन ही सीगा, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया उस तो बाद पहला आज़ाद भारत का कोई भी बंदा गवर्नर जनरल जोड़ा सीगा लॉर्ड माउंटबेटन ही सीगा। पर फिर लॉर्ड माउंटबेटन तो बाद पहला भारती जोड़ा बनया जी वो कौन सीगा? सी राजा गोपालचारी। तो सी राजा गोपालचारी क्वेश्चन बहुत बार आता, सो याद रखना पहला गवर्नर जनरल भारती जोड़ा सीगा। ठीक हो गया भाई। अगला आ गया, कहता किहड़े राज विच पहली गैर कांग्रेसी सरकार ने आज़ाद भारत की स्थापना की सी, है ना। केरला दे विच कीती है, बिहार दे विच कीती है, महाराष्ट्र दे विच कीती है, पंजाब दे विच कीती है। सो नॉन कांग्रेस, तुसीं ऐ मन्नो भी आज़ादी तो बाद कांग्रेस सीगी, ऑब्वियस गल है। तो पहली बार आज़ादी तो बाद ऐसा होया कि पहली बार कांग्रेस हारी, किहदे तो हारी? CPI तो, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो हार गई सी कांग्रेस की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो यह कदों होया सी? 1957 दे विच होया सी। एंड कित्थे होया सी? केरला दे विच होया सी। राइट, कित्थे होया सी? केरला दे विच होया सी। एंड जेकर उस टाइम ते मान लो CPI, क्योंकि जे मान लो आप ये क्वेश्चन बना रहे हैं कि यानी पहली बार कांग्रेस कदों हारी सी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कदों बनी सी, तो क्वेश्चन तो फिर यह भी बन जूगा कि पूरे भारत के विच पहली बार नॉन कांग्रेस CM है ना कौन बनया सी? नॉन कांग्रेस CM कौन बनया सी? तो CPI तो जोड़ा मैंबर सीगा यानी CM बनया, उसका नाम सीगा जी EMS नामबुद्दी। पूरा नाम मैं याद नहीं, नामबुद्दी तो चलो इतों तक तो याद है। इस तो बाद नामबुद्दी री पद है शायद,
RIPAD, एक बार चैक जरूर कर लियो। रीपद है शायद, नाम बुद्धि याद रख लोगे वैसे इन्ना बहुत है ना। EMS नाम बुद्धि ਜਿਹੜੇ कि पहले नॉन कांग्रेसी CM ਸੀਗੇ पूरे इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ स्टेट ਸੀਗੀ, केरला ਦੇ ਵਿੱਚ 1957। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ याद रखना है, ठीक हो गया भाई। इस तो बाद आ गया 26 नवंबर 1949, ਸਾਡੇ संविधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? ਹੁਣ 26 नवंबर 1949 ਨੂੰ अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ਜਿਹੜਾ भाई वो बन गया सी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अपना बन गया सी ते फिर 26 जनवरी यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम ते अडॉप्ट किया गया सी है ना, अडॉप्ट किया गया सी ते 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ इंप्लीमेंट कर दिता गया सी, ਉਸ ਨੂੰ इंप्लीमेंट कर दिता गया सी। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 26 नवंबर 1949 ਜਿਹੜਾ कि इंपॉर्टेंट है भाई। तो 26 नवंबर यानी कि इतने आंसर आ जाऊगा द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डे, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डे। तो एक चीज़ होर है कि यह 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाल भी ऑबजर्व किया जाता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता, कॉन्स्टिट्यूशन डे। एंड किहड़ी मिनिस्ट्री द्वारा पहली बार अनाउंस किया गया सी, ऐ कह लो। हालांकि अनाउंस तो यूनियन कैबिनेट ही करूगी, पर किहड़ी मिनिस्ट्री ने कहा कि यह दिन ऑबजर्व करना चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड इंपावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड इंपावरमेंट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक हो गया। अगला आ गया, कहता जी द इंडियन नैशनल कांग्रेस का पहला जनरल सकत्तर कौन सी। हुण इंडियन नैशनल कांग्रेस जी बनी वो बनी 1885 के विच। एंड फादर ऑफ INC यानी इंडियन नैशनल कांग्रेस को बनाने वाला कौन सीगा, जां कह लो भी सब तो वध हैल्प किहने कीती है, A.O. ह्यूम ने। तो इसे करके A.O. ह्यूम नूं ही इंडियन नैशनल कांग्रेस का पहला जनरल सकत्तर बनाया गया, यानी A.O. ह्यूम ही इहदा पहला जनरल सकत्तर सीगा। एंड जिहड़ा इहदा पहला सैशन होया सीगा उहदा जिहड़ा चेयरमैन जां कह लो प्रेजिडेंट, पहले सैशन का चेयरमैन जां प्रेजिडेंट कौन सीगा भला भाई, वो सीगा जी वुमेनस चंद्र बैनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। WC बैनर्जी यानी पहला प्रेजिडेंट, तो पर पहला जेकर जनरल सकत्तर की गल करेंगे तो A.O. ह्यूम आंसर इहदा आऊगा। अगला आ गया भाई। अच्छा एक चीज़ होर है कि जरा वैसे बहुत है, चलो हालांकि हुण तो बहुत मैं सैशन तो सारे करा दूंगा। ये पूछा जा सकता भी जी INC बनी है ना, वो वेन्यू किहड़ा सी जदों जिदन INC बनी है बेसिकली, यानी इंडियन नैशनल कांग्रेस की जिदन स्थापना हुई है, ਉਹਦਾ ਵੈन्यू कित्थे सीगा, ਉਹਦਾ ਵੈन्यू कित्थे सीगा, ये इंपॉर्टेंट अजकल पूछा जान लग गया। तो ਉਹਦਾ नाम सीगा भाई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे, राइट। सो याद रख लो भाई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे। अजकल ये भी क्वेश्चन पेपर के पूछा जान लग गया, राइट। यानी पहला वैन्यू तो पहला प्रेजिडेंट अपना वुमेनस चंद्र बैनर्जी यानी WC बैनर्जी, तो जनरल सकत्तर जिहड़ा सीगा भाई A.O. ह्यूम, तो फादर ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस भी A.O. ह्यूम नूं ही कहा जाता है। अगला कहता जी राजा राम मोहन राय ने ऑर्गेनाइज किया ए हिस्टोरिक एजीटेशन अगेंस्ट द, यानी राजा राम मोहन राय ने इस दे विरुद्ध इतिहासिक अंदोलन का आयोजन किया, कास्ट सिस्टम के विरोध किया, एवल कस्टम ऑफ सती। हुण देखो राजा राम मोहन राय दी ब्रह्मो समाज का ऑब्जेक्टिव कास्ट सिस्टम नूं अपोज करना भी सी, ऐसी कोई गल नहीं कि कास्ट सिस्टम उन्होंने अपोज नहीं किया। पर जिहड़ा इत्थे क्वेश्चन पूछा गया कि एक इतिहासिक अंदोलन वो होया सी सती प्रथा, सती प्रथा के विरुद्ध, राइट। सो यानी हुण कास्ट सिस्टम भी हो सकता, पर वो ब्रह्मो समाज का ऑब्जेक्टिव सीगा। पर जो परसनली तौर पर राजा राम मोहन राय की गल करिए बिफोर जिहड़ा की कहते होंदे आ ब्रह्मो समाज की इस्टैबलिशमेंट, उस तो पहला भी सती प्रथा के बारे ये बहुत बार बोलते रहे हैं। तो एवल कस्टम ऑफ सती यानी ये आंसर आ जाऊगा जी B, राइट हो गया। अगला कहता बहुत साल पहला असी किस्मत नाल कोशिश की सी अते हुण वो समा आ गया है जदों असी अपने वादे नूं पूरा करांगे। ये गल 14 अगस्त 1947 की रात नूं इस द्वारा कही गई सी, राइट। यानी लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी, है ना, एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज, है ना। यानी उसनूं आपां बेसिकली लै रहे हैं। तो 14 अगस्त 1947 नूं ओबवियस गल भारत आजाद होने वेले ये बोलिया सी भाई जवाहर लाल नेहरू ने। एक स्टेटमेंट होर सी कि हुण दुनिया सौ रही है तो भारत आज़ादी का आनंद मान रहा। ये भी स्टेटमेंट किहदे द्वारा कही गई सी, जवाहर लाल नेहरू द्वारा, राइट। यानी इसका आंसर आ जाऊगा जी C, ओके भाई। चलो अगला आ गया, कहता इंडियन नैशनल कांग्रेस ने 1920 विच ना मिलवरतन बारे प्रसिद्ध मता 1920 विच अपने सैशन, यानी वो किहड़ा सैशन सीगा, यानी जिहदे विच इन्हां ने नॉन कोआपरेशन जिहड़ी
हैगा रेजोल्यूशन इहनूं पास कीता सी एक तरीके नाल है ना। इंडियन नैशनल कांग्रेस ने जिहड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुहानूं पता महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई सी 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन कोऑपरेशन ਜਿਹੜੀ रेजोल्यूशन सीगा इसनूं पास किया गया सीगा। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ यानी नॉन कोऑपरेशन है जो रेजोल्यूशन पास किया गया सी। डायरकी जी इंट्रोड्यूस कदों की गई भाई? 1909 के 1919 के 1935 के नन ऑफ दीस। हुण देखो डायरकी पहला शब्द है, ये आए नहीं पूछा भी आपां नूं प्रोविंसिस दे विच इंट्रोड्यूस की सी डायरकी एट प्रोविंसिस पूछया जां सेंटर पूछया, इत्थे मैंशन नहीं हैगा। तो जिहड़ा पहला आऊगा फिर उही आंसर आऊगा, यानी 1919। तो डायरकी पहली बार इंट्रोड्यूस की गई सी 1919 दे विच। जे इत्थे लिख दिंदा कि डायरकी एट सेंटर सेंटर के इंट्रोड्यूस कदों की गई सी, तो फिर 1935 आऊगा है ना। पर इत्थे डायरकी कला लिखिया तो इस करके 1919 आ जाऊगा, जिन्होंने आप मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह दें है ना। पता होगा तुहानूं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आप कह दें। ठीक हो गया भाई, जिहड़ा कि सैक्रटरी ऑफ स्टेट हो गया तो वाइसराय हो गया उस टाइम का, ये याद रखना जरूरी है। इस तो बाद आ गया कहते लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 ਨੂੰ सरकार का तबादला कंपनी तो क्राउन डैश स्थान पर घोषित किया गया सी। हुण तुहानूं पता कि 1857 का विद्रोह होया, 1857 का विद्रोह होया तो उस तो बाद फिर इन्ना ज़्यादा भुचाल पै गया कि ब्रिटिश पार्लीमेंट तक गल चली गई। तो फिर क्वीन वालों एक प्रोकलेमेशन आया, यानी एक ऐलान आया कि हुण तो जिहड़ा भारत है वो डायरैक्टली ब्रिटिश पार्लीमेंट के हेठा हो गया है ना, कि कंपनी का रूल खत्म हो गया। कह लो कंपनी का खैर मोनोपोली तो पहला भी खत्म करती सी, यानी हुण जिहड़ा ब्रिटिश पार्लीमेंट के यानी सैक्रटरी ऑफ स्टेट होगा जिहड़ा कि रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लीमेंट नूं भेजूगा। तो क्वीन का जिहड़ा प्रोकलेमेशन वो पढ़िया, वो रीड किहदे द्वारा किया गया? जिहड़ा पहला वायसराय सीगा जां आखिरी गवर्नर जनरल कह लो है ना, पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बनिया। तो इहदे द्वारा पढ़िया गया वो कित्थे पढ़िया गया सी? वो पढ़िया गया सी इलाहाबाद दरबार दे विच, यानी यदा आंसर आ जाऊगा जी इलाहाबाद। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इलाहाबाद। एंड प्रोकलेमेशन की वो डेट भी बहुत वार पेपरों के पूछी जाती है। वो डेट है जी 1 नवंबर 1858 है, 1 नवंबर 1858। सो डेट भी जरूर याद रखनी है। अगला आ गया कहता जी इंडियन नैशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इकट्ठे कदों हुए? 1916 के इकट्ठे होए, पर वो किहदे द्वारा, यानी अच्छा किहदे द्वारा भी नहीं पूछा, कित्थे होया? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, हरीपुरा। सो इसका जो आंसर आ जाऊगा जी लखनऊ आ जाऊगा। इसनों आप लखनऊ पैक्ट भी कहने तो लखनऊ सैशन भी कहने है ना। तो लखनऊ क्योंकि 1907 जो सूरत स्पलिट होया सी, तुहानूं सब नूं पता होगा, जिहदे विच एक्सट्रीमिस्ट लाल बालपाल ते मॉडरेटर जिहड़े अलग अलग हो गए सी। 1907 दे विच सूरत सैशन होया, फिर 1908 तो लैके 1914 तक बाल गंगाधर तिलक जेल विच रहे, राइट। तो फिर 1915 दे विच गांधी की एंट्री हुई, 1916 दे विच फिर लखनऊ पैक्ट, यानी मुस्लिम लीग ते जिहड़ी हैगी भाई वो ये मैं सीक्वेंस वैसे ही दसता, यानी याद रखने का तरीका। तो मुस्लिम लीग ते कांग्रेस लीग है जिहड़ी वो फिर तो मिल गई है ना, भी भाई मिल जुल के काम करो। तो वो लखनऊ सैशन सीगा। अच्छा, सब तो वड्डा योगदान मुस्लिम लीग नूं मिलाउण दा ते जिहड़ी कांग्रेस लीग सी, यानी कांग्रेस सैशन सीगा, इंडियन नैशनल कांग्रेस ते मुस्लिम लीग नूं मनाउण वाला है ना, मिलाउण वाला कौन सीगा? बाल गंगाधर तिलक सी। तो मुस्लिम साइड तो कौन सीगा? मुहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ठीक है। मुस्लिम लीग वालों कौन सीगा? मुहम्मद अली जिन्ना ते बाल गंगाधर तिलक, यानी ये मिल गए भाई, मिल जुल के काम कर दिया। एंड उस टाइम पर जो लखनऊ सैशन होया, उस टाइम पर लखनऊ सैशन का जो प्रेजिडेंट से ये बहुत बार पूछा जाता भाई, वह नाम सीगा जी चरण मजूमदार। ये तो सारे पता होना चाहिए भाई है ना, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार पूरा लिख देना, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक हो गया भाई। सो ये प्रेजिडेंट सी उस टाइम पे, याद रख लो। अगला आ गया कहता जी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय भारत की आर्थिक निकासी के सिद्धांत को किसने पेश किया? यानी हु प्रपोनेंट द थ्योरी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत बार आया, ब्रेन ड्रेन थ्योरी दी है जी, राइट है। किहने दित्ती भाई? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने ब्रेन ड्रेन थ्योरी दी है।
इन्हां दी एक बुक है भाई जिहदे विच इहदा वर्णन है, उहदा नाम हैगा जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इस दे विच दित्ता सीगा ब्रेन थ्रू दादा भाई नरो जी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सारा कुछ आप पहले पढ़ भी चुके हैं, राइट है ना। ओके भाई कम। अगला आ गया, कहता जी भारत में सब तो पुराना ट्रेड यूनियन संगठन केड़ा है? सौखा क्वेश्चन है। इंडियन नैशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, सेंटर ऑफ इंडियन, चलो मैं दस ही देना सीधा ही कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिहड़ा ये भाई सब तो पुराना, जिहड़ा कि 1920 ਦੇ बनया सीगा ते लाला लाजपत राय वर्गे द्वारा बनाया गया है ना। 31 दसंबर 1920, 31 दसंबर 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई। लाला लाजपत राय ਦੇ फाउंडर सीगे, होर नाल भी सीगे, जोसफ भी सी, होर भी बहुत सारे सी, राइट है। बट जेकर आप प्रेजिडेंट की गल करिए कि भाई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जी 31 दसंबर 1920 ਨੂੰ बनी आ, ਉਹਦੇ प्रेजिडेंट पहले कौन सीगे? लाला लाजपत राय। तो ਇਹਦਾ वाइस प्रेजिडेंट भी याद रखना भाई, वाइस प्रेजिडेंट भी बहुत बार पूछा गया, वो कौन सी भाई? दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल। सो ये भी चीज़ां इंपॉर्टेंट बनदियां भाई, याद रखने के तरीके। अच्छा चलो, पढ़ाਉਂਦਾ मैं भुल जाना कि थोड़ा जिहा बोल दिया करिए। एप्लीकेशन अपनी हैगी है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, उत्थे बहुत सारे वधिया वधिया कोर्स पे ने, टेस्ट सीरीज़ है ज्वाइन कर लो भाई। बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के हैगे, अपनी एप्लीकेशन भी हैगी है, उन्होंने इंस्टॉल करो जेकर किया होया तो फिर भाई देखो सारा कुछ, राइट। होर बहुत सारे ऐलान आप हौली हौली कर दिया करांगे। बाकी जो मैं पढ़ाउणा हुन्ना मेरे तो बोले नहीं आता, राइट। पता नहीं किवें बोल लेंदे आसे पासे, पर पढ़ाउण वेले सिर्फ फोकस पढ़ाउण ते, राइट है। चलो खैर, कई बार मैंने अपने आप ही लगन लग जाता भी नहीं थोड़ा जिहा बोलना चाहिए, मैं स्टूडेंट भी कह देंगे है ना। चलो खैर चलो, सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, तो सर्वोदय की है? सर्वोदय का मतलब की है? टोटल रेवोल्यूशन है, नॉन कोऑपरेशन है, अपलिफ्टमेंट ऑल है, तो नॉन वायलेंस है। ये सर्वोदय जो वर्ड आया ना, ये बेसिकली 1908 के विच आया। किहदे द्वारा आया? ये महात्मा गांधी द्वारा आया। ये पूछा जा सकता, इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा गांधी द्वारा आया। कदों आया? 1908 याद होगा तुहाडे। 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ब्लैक एक्ट आया है ना, एशियंस के नाल बड़ा वितकरा किया जाता है साउथ अफ्रीका के विच। तो उस टाइम ते सर्वोदय का मतलब जोड़ा सीगा बेसिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, ये तो महात्मा गांधी द्वारा कहा गया सी, राइट। अपलिफ्टमेंट ऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1908 के नाल महात्मा गांधी। अगला आ गया, कहता दक्षिणी अफ्रीका के किहड़े शहर में गोरे लोगों ने गांधी नूं कुੱਟਿਆ ते फुटपाथ ते सुੱਟ दिता। ये क्वेश्चन के विच कंट्रोवर्सी बहुत है, क्योंकि आम तौर पर जो पेपरों के क्वेश्चन आया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਬਨ आंसर ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਡਰਬਨ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਪੀਟਰ ਮੈਰਿਟਸਬਰਗ। यानी जे मान लो डरबन ऑप्शन के ना होवे जां होवे भी ते नाल आ भी ऑप्शन के होवे, फिर एक्यूरेट आंसर आई लगाओ पीटर्स मैरिटसबर्ग, राइट। बट जे मान लो ये ऑप्शन के है ही नहीं तो फिर डरबन ऑप्शन के ला सकते हो। हाँ जो दोनों ऑप्शन के फिर पहले प्रायोरिटी इनू दो, जे ये है ही नहीं फिर तो यह आंसर आ ही जाऊगा, जे ये है नहीं तो फिर डरबन भी आंसर आ जाऊगा, राइट है। सो याद रख लो भाई पीटर मैरिटसबर्ग, ओके। इस तो बाद आ गया भाई कहना 1927 विच नैशनल कांग्रेस की तरफों कहता ब्रसल्स दे विच दबे कुचले जिहड़े राष्ट्रवादियों की कांग्रेस विचों कौन शामिल होया सी, राइट है। यानी हु अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ द अप्रैस्ड नैशनलिस्ट जिहड़े ब्रसल दे विच होया ब्राजील दे विच 1927 दे विच, तां इंडियन नैशनल कांग्रेस की तरफों उस दे विच मैंबरशिप यानी भागीदारी कौन सीगा भाई, उहदा नाम सीगा जी जवाहर लाल नेहरू। हुण इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ याद कर लो, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। जवाहर लाल नेहरू, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन आ गया कहना खेती लहर नूं पंजाब विच जथेबंद लई डैश साल किहड़े साल विच लाला लाजपत राय नूं मांडले विच देश निकाला दिता गया सी। हुण खेती लहर चलाई सी यानी एग्रेरियन मूवमेंट चलाई गई सी पंजाब दे विच लाला लाजपत राय द्वारा, ते इस लहर के बाद ही लाला लाजपत राय नूं पंजाब केसरी कहा गया। पंजाब केसरी के नाल एक होर टाइटल भी है शेरे पंजाब। चलो खैर, तो जो लाला लाजपत राय ने यह बेसिकली इन्होंने डिपोर्ट करता सीगा मांडले, जिन्होंने आप अजकल म्यांमार कहने बर्मा, राइट, उत्थे भेजता सी। ते कदों सी भाई ये 1907 दे विच, कदों सी 1907 दे विच। ये चीज़ां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक हो गया। अगला
ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਖੂਬ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈਡ ਐਂਟਰਟੇਨਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਿੰਟੋ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ, यानी ये क्वेश्चन बार-बार घूमता रहता, तो याद रख लो भाई विलीयम बेंटिक, राइट है, यानी ਇਹਦਾ आंसर आ जाऊगा बी। ठीक है, सो देखो ये ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है ये किसी ना किसी एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ पक्का आए हुए ने। एंड मेरा मनना यह है कि जो आप सैशन लावांगे, हुण देखो हर रोज़ रिवीजन चल रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर लेट हो सकता टाइमिंग का। मैं रात को कोशिश करदा कि रात को ही पावां, जिवें हुण भी टाइम हो गया, देखो 9 वजन वाले आ, तो मैनूं लगदा 9 बजे तक ये अपलोड होगी, तो उस तो बाद फिर यानी थोड़े सामने आऊगी, है ना। तो थोड़ा बहुत लेट जरूर हो जाता, बट ये हुण आऊगा क्योंकि रिवीजन सीरीज़ है। इस तो पहले मैं बहुत घट यूट्यूब पर आया, थोड़ा पता कि मेरा फोकस है जो किसी जो मैं फोकस कर लेना तो स्टूडेंट से फोकस होंगे, हुण थोड़े ते फोकस है तो हुण थोड़े कन्नी फोकस हो गया, राइट। सो कोई चक्कर वाली गल नहीं है कि रिवीजन दे विच यही चीज़ है कि ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन आउंदे देखण दे विच भावें सौखे पर आंसर कई बार गलत हो जाते हैं। कारण की है कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਉਵੇਂ नहीं हैगा, याद उवें नहीं करवाया, जेकर मैं याद करवा रहा तो ठीक है। बाकी यूट्यूब ते जिन्ना घट रहूँ उन्ना वधिया, भावें मैं यूट्यूब ते हैगा पर मैं फिर भी कहना हुन्ना कि भाई जेकर मैं वधिया लगदा तां ही देखो, टाइम पास ना करो, राइट। एक दो टीचर है जिहड़े ओह पक्के कर लो कि हाँ ये टीचर घट गल्लां करदे आ, सीधा पढ़ाई दे फोकस रखते हैं। इस करके सानू पता है कि जेकर अद्धे घंटे का लैक्चर है, घंटे का लैक्चर है, तो उहदे विच काम की गल ही होगी, बकवासबाजी नहीं होगी। लाइव लैक्चर वगैरह इसे करके मैं लाउंदा नहीं, क्योंकि मैनूं लगदा कि उहदे विच गल्लां बातां बहुत हो जांदियां। बाकी ये गल्लां मैं हर वीडियो दे विच लगभग बोलदा रहना, अमल करने वाले कर जाते हैं। चलो खैर, तो विलीयम बेंटिक दा आंसर आ गया। इस तो बाद आ गया भाई आर्य समाज। हुण यह क्वेश्चन रिपीटड है, यानी आखिरी अपने सैशन के होया गया। मैं ये मानदा कि तुसीं इत्थों तक मेरे नाल ही आए हो वीडियो के विच, जेकर इत्थों तक पहुँच गए तो फिर यदा आंसर कमेंट बॉक्स के जरूर दस देना। चाहे बाकी कमेंट भी कर रहे हैं तो तुसीं कमेंट करके अपनी हाज़री लवा दो, उहदे नाल जस्ट इन्ना हुंदा भी हाँ चलो स्टूडेंट है जिहड़े ओह नाल ही देख रहे हैं सारा कुछ। तो यदा आंसर कमेंट बॉक्स के आ जाना चाहिए। एक होर क्वेश्चन ये नाल ही पूछ लेना कि भाई ये कदों फाउंड की गई सी, यानी इसकी फाउंडेशन टाइम कदों है, यानी फाउंडेशन ईयर की है, राइट। तो पंजाब दे विच पहली ब्रांच कदों ते कित्थे सी? पंजाब दे विच पहली जिहड़ी ब्रांच सीगी वो कदों ते कित्थे ओपन की गई आर्य समाज की। बस इन्ना क्वेश्चन मैं पूछ लिया, ठीक है। सो ਇਹਦਾ आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स ਦੇ दे देना। तो बाकी ਆਪਾਂ नवे सैशनों के नाल मिलते रहांगे। किवें तुहानूं सैशन लग्या वो तुसीं दस ही दोगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप होर नवे वीडियो नाल इसे तरीके नाल मिलते रहांगे। बाबा नानक मेहर करे, चढ़दी कला चली पढ़ते रहो। तो आपां अगले सैशन के किसी होर सबजैक्ट के नाल भी मिलांगे, हो सकता हिस्टरी ही होवे। थैंक यू सो मच।